और इस माइंडसेट से बैठेंगे तो आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो हमने आगे जाके डिस्कस करनी है खुद ब खुद ऐसी होगी. From a therapist point of view, the therapist also have resistances, mind you. Therapist अपनी भी resistance के साथ बैठा होता है. अगर हम उस resistance के साथ खुद बैठे होंगे तो we will not be able to assess their motivations, assess their potentials. Biggest influence on the patient outcome is the therapist themselves. ये वही वाली बात है. We can predict the influence of the therapist by looking at empathy. If therapist confronts leads to resistance and lack of change. When you are empathetic, and you start being empathetic and being genuine to your client, आप after some time आपको नजर आना शुरू हो जाता है कि मरीज कितना resist कर रहा है आपसे, मरीज में कितने changes आ सकते हैं, कितने changes आ रहे हैं, ठीक है. So you can predict how much. मरीज के सवाल करने से पहले आपको अंदाजा हो जाता है कि अब मरीज इस लाइन पे सोच रहा है, which gives you very good insight. So motivational interviewing की when you talk about कि motivational interviewing का पैकेज क्या है, कि कैसे हम चलते कैसे हैं. पहले हमने बात कर ली इनिशियली कि what terms should we be aware of, किस चीज को हमने अवॉइड करना है, किस चीज को हमने लेके चलना है. मोटिवेशन इंटरव्यूइंग में आपने 4 काम जो करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, you are going to engage your client, an initial conversation to break the ice and build rapport. मरीज से पूछें और डिस्कस about his outlook. What did he have for lunch? नाश्ता करके आए हैं, मौसम कितना अच्छा है. Or if they're wearing a nice watch, you can discuss about them. Icebreaker, break the ice. Number 2, focusing on understanding the client is saying and how he or she feels. You're going to focus on the potentials. You're going to focus on the client themselves. You're going to focus on what they are saying, how they are saying, how receptive they are to you. ठीक है? How much are they willing to work? Client को समझना बहुत जरूरी है. Evoking your client's thoughts, feelings, motivations and concerns. During your conversations, आपके clients की सोचें क्या हैं? वो इस वक्त क्या anxiety में है, stress में है, agitated है, hopelessness है, helplessness है. A, motivation, जो पहले हमने बात की वो क्यों आया है. तो ये हम जब सवाल पूछते हैं, you should have a plan in your mind. पहले प्लानिंग करने से पहले आप engage जरूर करें, उसके मसले पे फोकस करें, उसके इमोशंस, फीलिंग्स और सोचें regarding the problem that he has, और concerns जो हैं उसको हमने we have to discuss those. Finally, talk about a plan of change. Then we come to the actual skills. What are we going to do now? What are we going to do to start to bring about this change? So how do we do engagement? Ask permission. When we talk about permission की asking में, तो हम ये पूछेंगे कि do you think you want to work with this? Are you in a place where you think you want to get better? This is very important. Express empathy. हर मरीज के साथ अगर आप genuine empathy show करते हैं, not sympathy, not just a discussion, not just listening, but being empathetic, being understanding what they feel, and you absolutely emotionally relate to that feeling. आप अगर genuinely, if you're putting yourself in the patient's shoes, the patient is going to know it. आपकी body language बदल जाती है, आपके facial expressions बदल जाते हैं, आपका rapport का style बदल जाता है when you're genuinely empathetic. Ask open-ended questions, इसके ऊपर हम जाएंगे. Use autonomy, use support autonomy, इसके ऊपर भी हम जाएंगे. We're going to talk about it. कि हम किस तरह करेंगे. तो फोकसिंग के ऊपर हम जब बात करते हैं तो agreeing on an agenda, reflecting, summarizing and developing discrepancies. Whenever you're having an emotional, whenever you're having a talk, when you're exploring with your client, so you're going to explore their ambivalence, you're going to explore their emotions, किस direction में वो जा रहे हैं. हमने उनकी resistance के साथ जाना है. जब हम उनकी resistance को explore करेंगे तो हम agenda पे agree कर सकते हैं. They already have the right skills, they already have the potential to change. We have to talk about the change and how they can bring about it. फिर हम उसको reflect करते हैं, उनके thought process को, उनके concepts को हम rephrase करके उनको बताते हैं. जो पूरी एपिसोड में, पूरे आपके सेशन में जो बात हुई होती है उसकी समराइजिंग हम साथ साथ कर रहे होते हैं. And we discuss that with the client as well. Discrepancies, what
we want the client to achieve or what the client wants to achieve? क्या आप सेम पेज पे हैं? ये बात याद रखें जब आप मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर रहे होते हैं कि जो मरीज बात कर रहा होता है जरूरी नहीं है कि आप भी वही बात कर रहे हैं। आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में सवाल कुछ पूछते हैं और मरीज को किसी और कॉन्टेक्स्ट में जवाब देता है और बड़ी एक गैप्स आता है। तो डिस्क्रिपेंसी उसको अंडरस्टैंड करनी सिखानी है हमने कि डिस्क्रिपेंसी हाँ है, हमने जो सवाल पूछा है और जो आप बता रहे हैं उसके अंदर से। सबसे पहले जब हम फोकस की बात करते हैं, फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट योर क्लाइंट इज सेइंग और हाउ ही और शी फील्स, यू गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट द क्लाइंट्स करंट सिचुएशन इज, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसको इफेक्टिवली आपने गाइड करना है, इसमें उसको डायरेक्शन देनी है कि प्रोडक्टिवली उसका सेशन किस तरीके से लेकर चलेगा। व्हेन योर क्लाइंट कम्स टू यू तो दे कम विद अ टोटल ब्लैंक स्लेट. Most of them might have had therapy, might not have had therapy, and when you have determined that this is the case for MI, अपने motivational interviewing से करनी है. So when we discuss focusing on the client, so we start the conversations, and उसमें हम छोटी-छोटी जगहों पे it's always a combination of different things. कभी हम reflect करते हैं, कभी हम summarize कर रहे होते हैं. अगर आप if you pick up the different conversations अगर हम pick up करें तो एक ongoing process चल रहा होता है जिसको हम productively जब हम बात कर रहे होते हैं तो as therapist हमारे client की discussion में reflections चल रही होती हैं, हम उनको उन्हीं की बात different लफ्जों से उन्हीं को reflect back करके सुनाते हैं। हो सकता है मरीज जिस तरीके से कर रहा है उसको reframe करना हम focusing में सिखाते हैं। So what do we evoke? We evoke motivations, we evoke concern. When we talk about motivation, motivation is very empowering. And when we talk about motivation, we also have to talk about traps and labels. You thoughtfully evoke your client's thoughts and feelings and concern. उसके साथ discussion में जाते हैं और अंडरलाइंग उसकी जो कंसर्न्स होती हैं वो उसकी डिक्रीज करती हैं या इंक्रीज करती हैं मोटिवेशन। यानी अगर आपके पास कोई एक क्लाइंट आया और वो कह रहा है कि they're doing in O levels, I'm seeing a client who's 14 years old and she's doing her O levels, और वो and that वो कहती है कि मैं पहले पढ़ रही थी अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता, I'm coming into gaps and I feel कि I'm not able to continue with my उस तरह से मैं नहीं पढ़ रही जिस तरह मुझे आपने अब पढ़ना चाहिए। एक अंडरलाइंग कंसर्न उसकी क्या है? अगर आप नहीं पढ़ रही हैं तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? उसके बाद क्लाइंट कहेगा मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। नंबर 1 उसकी कंसर्न, जब उसकी कंसर्न ही यही है और जो उसकी कंसर्न है वो उसकी मोटिवेशन बढ़ाएगी या मोटिवेशन कम करेगी। सो यू हैव टू ask and elicit the correct concerns. अगर आप if you're not getting the good grades, what does that mean to you? और फिर वो आपको बताएगी पूरे कि वो मीन क्या, इसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे evoke करें क्लाइंट को। क्लाइंट जब अपने कानों से अपनी कंसर्न्स खुद सुनते हैं ना तो एक डिफरेंट चीज होती है। याद रखिए they're not asking the right question. It is very important to ask the right question. अगर आप सवाल सही पूछते हैं तो जवाब देने के लिए आपको सवाल पे गौर करना पड़ता है। अगर आप जवाब गलत पूछते हैं मरीज से तो मरीज को समझ नहीं आती है कि या वो खुद कंफ्यूज होता है कि जवाब क्या होना चाहिए। Then we come to the plan stage. So when we talk about the plan stage, we're talking about subject, raise the subject, support self-efficacy, address the elements of change. Give the person response and readiness to change. The next step is to talk about a plan to change. The plan may just be to talk about it. Later, if the person isn't ready, people are more likely to follow through a change when they have a specific plan and express to another person their intentions to carry it out. अच्छा, ये याद रखें कि when जब किसी ने प्लान बना लिया कि हमने चेंज करना है तो प्लान हमेशा हर किसी का एक प्लान क्लियर नहीं होता। हमने प्लान के अंदर ये बात डिटरमिन करनी है कि मरीज समझे कि वो सेल्फ एफिकेसी उसके अंदर है। We talk about and we discuss in terms of empowering the client, that the client is able to change. Number 2, he is able to support his self-efficacy. यानी उसके अंदर ये जो भी qualities हैं, they can bring about the change. इसमें हमने elements of change जरूर address करने होते हैं। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत सी बात है
when we talk about change, we always talk about what do you mean by change? And जब वो ambivalence की बात करेंगे तो मेरी हमेशा कहता है कि जी हो नहीं रहा. We talk about change तो हम सबसे मजेदार बात है किसी को हार्ट अटैक हुआ है लेकिन हार्ट अटैक के बाद भी वो दवाइयां खाकर they're having oily food, spicy food, they're having the Lahori food और वो वर्कआउट भी नहीं कर रहे. An alcoholic is having constant breakouts, blackouts. They are constantly having small criminal activities. उनसे बच्चे भी दूर हो रहे हैं, घर वाले भी दूर हो रहे हैं, फिर भी वो नशा करे जा रहे हैं. टीनेजर्स को पता है कि यही टाइम है हमारा पढ़ने का, फिर भी उनसे पढ़ा नहीं जा रहा. So why do people change and why do we want them to change? This is very important. When you ask the right question and you give the right plan, this is the state that the patient is coming to you in. So the plan may just be to talk about it. पहले आप शुरू में सिर्फ बात करेंगे कि why do you want to change? Why do you want to change at this point? People are more likely to follow through with the change when they have a specific plan. आपने बड़ा जरूरी है कि points list down कराएं. We have amazing, brilliant worksheets available on hand. I'll share them with you later on after the workshop as well. जिसमें हम plan to change कि कुछ points note down कराते हैं. हम goals of therapy कुछ note down कराते हैं. What are your goals for therapy? Why do you want to change? Why do people change? इन सवालों को when they start asking these questions, they express to another person जहां पर वो intention to carry out होती है. So initially we talked about what the things are and how they proceed. Now we can talk about what are the core skills. What are the skills that we can do? What can we actually do with the client? आप कर क्या सकते हैं मरीज के साथ? उसको किस तरह लेके चल सकते हैं? किस तरह आप उसको enhance कर सकते हैं? How can you help them out? How can you work with them to bring about a change? When we're talking about change, we're talking about the four core skills of MI. बहुत important है कि आपके पास ये four core skills होने चाहिए. ठीक है? When you have these four core skills, you are able to understand them and practice them with the client. जो लोग नए हैं, जो कि who have not worked so much on MI, मैं बहुत I would really like कि आप line of questioning को जरूर try to work with it. इसको everyday life में when you're having discussions or when you're seeing your clients, case reports आप लोग जब कर रहे होते हैं तो ये line of questioning जरूर इस्तेमाल करें. MI एक ऐसा बहुत खूबसूरत skill है, लेकिन it has to be practiced again and again in order to get it right. So it needs a little bit of work. Okay, so we start with open-ended questions. So in open-ended questions, you help the client to help me to understand what needs to change for things to get better. What do you want to do to get better? हम हमेशा open-ended और close-ended questions की जब बात करते हैं, तो हम कभी भी open-ended and close-ended questions में we don't talk about do you feel this way? Yes and no. जब आपका yes and no में जवाब आ गया, that's a close-ended questions. We're not doing it like that. So when we're talking about open-ended questions, we're talking about how would you like things to be different? What do you know about the risks? Ms. Sana, we have a question. Ji. Ji Mohibba Qayyum, you have a question. Yes, ma'am. Ma'am, actually, आपने भी एक point share किया कि we should be empathize. हमें empathy show करनी चाहिए अपने clients को ताकि वो easy हो और हम उनको better way में उनका treatment कर सकें या उनको diagnose कर सकें. तो मैम, I have a question here कि हमने ethical जो हमारे पास ethical issues हैं उसके अंदर ये चीज़ study किया है कि जब हमारे पास कोई client आता है तो हमें उनको एक formal इस तरह से उनको बोलना चाहिए अगर मिसेस मैम इस फॉर्म में. तो मैम जब हम ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि जब हम किसी के साथ एम्पैथी शो कर रहे होते हैं तो थोड़े से फ्रेंडली वर्ड्स हमारे मुंह से उनको ग्रीटिंग वर्ड्स हमारे थोड़े से फ्रेंडली हो जाते हैं. तो मैम वो क्या इश्यूज जो हमारे एथिक्स है साइकोलॉजिस्ट की उसके अगेंस्ट है या नहीं, मतलब वो गलत होगा या नहीं? I think that's a wonderful question. Thank you so much, Mohibba. Yes, ma'am. Okay. So आपने जो ये question पूछा, that's very, very important, and I think that needs to be addressed. This is a skill.
to be very honest, कि आपने empathy कैसे show करनी है, because obviously you have your ethical guidelines, number one, you have your gender के साथ भी आपका एक limitation आ जाती है. दूसरी बात ये है कि how much can you be genuine with the client, be empathetic without it being too informal or unethical. याद रखें, when you have been doing therapy for a number of years, आपकी boundaries determine करनी आ जाती है. इसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज थेरेपिस्ट को, जैसा मैंने शुरू में कहा था, थेरेपिस्ट को अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी लैंग्वेज एंड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. ठीक है, हम एम्पैथी अगर किसी के साथ करें तो जेन्युइन जब होती है ना तो फौरन पिक कर ली जाती है. और दिस इज नॉट अनएथिकल. एम्पैथी है ही वन ऑफ द क्रक्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी. वो पहला पेज ही आपको एम्पैथेटिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड एम्पैथी इज नेवर अनएथिकल. हाँ, जब आपकी ये वाली बात ठीक है, जब आप टाइटल्स लगाते हैं कि मिस्टर दिस एंड मिसेस दिस आप बात करते हैं, तो आपकी वो फ्रैंकनेस या वो नहीं आती. एम्पैथी के लिए याद रखें, लफ्जों का चुनाव आप बहुत ही बड़ी प्रोफेशनल लफ्जों का चुनाव कर भी आप एम्पैथेटिक हो सकते हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी आपने इतनी कंट्रोल रखनी है कि वो इनफॉर्मल ना हो लेकिन एम्पैथेटिक हो. जब आपका इमोशन एज अ थेरेपिस्ट जेन्युइन हो तो आप वो कन्वे हो जाता है. उसके लिए आपको आर्टिफिस या बहुत ज्यादा इनफॉर्मल लफ्जों या क्लाइंट का नाम लेना जरूरी नहीं होता. आप मिसेस असगर करके भी बात करके कर रही हैं और आप लफ्जों को ऐसे चल रही हैं कि वो इनफॉर्मल हैं, तो इट डजंट मीन कि इनफॉर्मेलिटी आल्सो डज नॉट मीन कि आप अनप्रोफेशनल या अनएथिकल हो जाए. इट्स अ वेरी आई थिंक गुड बैलेंस. यहाँ पर मुझे लगता है कि ट्रेन सुपरविजन बड़ा अच्छा काम करती है. मैं हमेशा यंग साइकोलॉजिस्ट को कहती हूँ कि हमेशा अपने सुपरवाइजर्स में रोल मॉडल्स देखें. एंड जब आप बैठे होते हैं, सेशंस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जरूर देखें. हम शुरू में आई थिंक मॉडलिंग और वाइकेरियस लर्निंग बहुत खूबसूरत रोल अदा करती है थेरेपिस्ट के लिए, क्योंकि शुरू में आपको अपना स्टाइल डेवलप नहीं होता. आप अपनी उन स्किन में आते आते भी आपको कुछ साल लग जाते हैं कि आपने किस तरह बात करनी है, लफ्जों का चुनाव कैसे करना है, आई कांटेक्ट कितना मेंटेन करना है, बॉडी ओपननेस कितनी होनी चाहिए. ऑब्जर्व योर सीनियर्स, ऑब्जर्व थेरेपिस्ट इन एक्शन. I think YouTube is also a good way to आप हमारे यहाँ बहुत ऑनलाइन सेशंस different modalities के पढ़े हैं. That is a very good role play करें, modeling करें, and you learn to be effective. Plus, when you start doing it, after a certain number of years and times, you develop your own, you get comfortable in your own skin. आपको खुद पता चल जाता है कि मरीज के साथ कितनी फ्रैंकनेस करनी है. और बहुत जरूरी है एम्पैथी के लिए कि यू हैव अ जेन्युइन कन्वर्सेशन. आप खुल के बात करें उनके साथ, कंफर्टेबल बात करें उनके साथ, बिकॉज हम दुनिया के हर टॉपिक पे, जिंदगी के हर मसाइल पे हम उनसे बात कर रहे होते हैं. अगर हम एम्पैथी नहीं शो करेंगे, और ये हमारी अपनी इनिशियल रिजर्वेशंस होती हैं कि हम एथिक्स में बहुत ज्यादा हमें लग रहा होता है हम अनएथिकल तो नहीं हो रहे हैं अगर हम ज्यादा फ्रैंक होके बात कर रहे हैं. माइंड यू, आपने फ्रैंक नहीं होना. They are not your friend, they are your client, but you have to be genuine. Emotions genuine रखें और body language professional रखें, तो वो आपके genuine emotions, आपकी non-verbal communication से भी कुछ ना कहे हुए भी, जब आपको मरीज आपका कुछ कहने की जरूरत नहीं होती आपको रेपो के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत होती है. अगर आप अच्छे से कन्वे करते हैं कि हाँ वाकई उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करके वो तकलीफ में आ रहे हैं, तो they do get that. I hope that answers your question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you very much. Jazakallah. Good morning, sir. Okay, I'll share. I hope my. Because you know, when we are getting empathetic towards people, sometimes it happens वो जो Rabbi, you're not audible. Ms. Sana, can you please continue? Yes. Okay. So we talked about, I think. Rabbi, you're not audible. Okay.
Okay, so we were talking about the plan. So plan के बाद हम skills पर आ गए थे, open-ended questions, affirmations, and we have reflective listening. So we're going to talk about open-ended questions. Number one, enable the client to convey more information, encourage engagement, open the doors for exploration. सवाल ऐसे पूछे खूबसूरती से, ऐसे रखे सवाल कि जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. ऐसे सवाल मत रखें कि बिल्कुल इंफॉर्मेशन खत्म हो जाए. सवाल को इतना खुला रखें कि जवाब आसानी से और फ्री फ्लो से आए. याद रखें, द मोर द इंफॉर्मेशन द बेटर द मोटिवेशन. दैट्स द मोटो. सो यू हैव टू गैदर अ ब्रॉड डिस्क्रिप्शन. बड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शंस आपको चाहिए. आपको छोटी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. आपको मोर देन अ यस एंड नो चाहिए. हाँ या ना में जवाब बिल्कुल नहीं आना चाहिए. हाँ या ना में जवाब आया इसका मतलब है कॉन्वर्सेशन को फुल स्टॉप लग गया. इट्स नॉट गोइंग टू कंटिन्यू. हाँ, आसान चीजें क्या है, ये कुछ चीजें याद रखें. मेरा आई रियली इनकरेज कि आप लोग स्टार्ट राइटिंग दिस क्वेश्चंस. यू कैन राइट ओपन एंडेड क्वेश्चंस. व्हेन यू आर गोइंग टू डू एमआई, आपने इनटेक सेशन किया है और आपने सोच लिया कि एमआई करना है. इफ यू स्टार्टिंग इट आउट, एक वर्कशीट बना लें. हाउ, व्हाट, टेल मी. क्या मुझे आप बता सकते हैं कि अगर आप जिंदगी में तब्दीली लाएंगे तो किस तरह लाएंगे? हाँ या ना? नहीं है. खुला खुला सवाल है. What would be your biggest motivation right now? Can you tell me about it? अब इसमें हाँ या ना नहीं है. आपकी इस वक्त जिंदगी में सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है कि जो आपको लगता है कि अगर आप जिंदगी का स्टाइल बदलें तो कैसे बदलेंगे? हाँ या ना नहीं है. टॉपिक को आप गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. खुला खुला सवाल पूछें कि इस वक्त आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें बदली जा सकती हैं, मुझे बताएं. तो अगर आप जनरल सी बातें शुरू करेंगे तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आएंगे. अगर आप, ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी टिप ये है कि आपने स्पेसिफिक किसी एक बात के बारे में नहीं पूछना. नशा क्यों छोड़ना चाहते हैं? घर में सबसे ज्यादा किससे करीब हैं? अगर हम ऐसे ना होता तो कैसे होता? आस्क अबाउट जनरल थिंग्स. डोंट आस्क अबाउट वन और टू थिंग्स. एक जिंदगी के बारे में, नशे के बारे में, घर वालों के बारे में कैसा सवाल पूछ करें, पढ़ाई के बारे में, जो भी आपका क्लाइंट है उसको, कि वो खुला आपको जवाब दे. अगर आप एक स्पेसिफिक एक टॉपिक, एक इशू के बारे में पूछेंगे तो एक सिंगल जवाब आएगा. और अगर एक सिंगल जवाब आएगा तो हम उसके अंदर उसकी मोटिवेशन, जो उसके पोटेंशियल छुपे हुए हैं, वो हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे. और उस पोटेंशियल्स को हम एज हाइपोथेसिस एंड प्रूफ की तरह मरीज को नहीं प्रेजेंट कर सकते. याद रखिए, मरीज आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है लेकिन मरीज को खुद भी अवेयरनेस नहीं है. वो क्या क्या उसके अंदर खूबियां हैं, खसूसियात हैं, जिससे वो अपने अंदर वो एक नशा छोड़ने की तरफ जा सकता है, बेहतर जिंदगी की तरफ जा सकता है, सोबर जिंदगी की तरफ जा सकता है, अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ सकता है, अपनी स्मोकिंग को छोड़ सकता है, अपने घर वालों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स इनकलकेट कर सकता है. ये सारी बातें आपको वो खुद इंफॉर्मेशन देगा कि वो क्या क्या उसके अंदर ए क्वालिटीज है, नंबर बी रिसोर्सेज क्या क्या उसके पास अवेलेबल है, सपोर्ट सिस्टम्स क्या क्या है उसके. जब तक आप उसको खुला सवाल नहीं छोड़ फेंकते हैं तो खुला नेट फेंके ताकि ढेर सारी इंफॉर्मेशन आए. अगर तंग नेट फेंकेंगे तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं क्लियर आपके पास आएगी. तो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि चेंज किस तरह आएगा, किस तरीके से आएगा. एंड चेंज कैन बी नेचुरल या चेंज सेल्फ एफिकेसी के थ्रू आ रहा है. ये बात याद रखें. बड़ी अच्छी मिसाल इसकी ये है कि कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो कॉलेज के जमाने में थोड़ी सी हैश और वीड करते हैं और फिर खुद ही छोड़ देते हैं. कुछ टीनेजर्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमने 9वीं तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, फिर 10वीं में खुद ही कुछ अपने अंदर चेंज आया और हमने पढ़ना शुरू कर दिया. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं इतने, वो जो हमने वीडियोस नहीं है, अब रील्स अगर फेसबुक वगैरह की देखे, कितनी रील्स हैं जी, 100 kg 6 months ऑफ एक्सटेंसिव वर्कआउट और जी अब डाउन टू 70 kg. What was the thought process? What was that natural motivation? Without therapy, जो लोग अपने अंदर एक तब्दीली ले आते हैं, वो क्या, उनके अंदर क्या चल रहा होता है कि वो नशा भी छोड़ देते हैं, पढ़ाई शुरू कर देते हैं, वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं. That is what you are aiming for and you will never get that information if you ask आपने नशा शुरू करना क्यों शुरू किया और अब आपको लगता है कि आप नशा छोड़ सकते हैं. आपको पढ़ना चाहिए, आप थोड़ा 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 करके पढ़ना शुरू कर दें.
अगर आप इस किस्म की, if you're gonna have these statements and these conversations, they are never going to bring about a change. You always need to be more broader in your concept. Opportunities to explore ambivalence, ये बड़ी खूबसूरत क्वालिटी है कि जब आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन के जो जवाब आता है ना, उसमें एम्बिवलेंस की समझ आती है आपको. द पेशेंट इज देन गोइंग टू टेल यू कि वो क्यों नहीं चेंज कर सक रहा, करना भी चाहता हूँ नहीं भी कर सक रहा. जब आपने एक ओपन एंडेड सवाल पूछा, तो द क्लाइंट will come up with information that why are they not doing it when they want to do it but they can't do it. When you have a lot of information, जो आपने चीज नहीं भी पूछी होती, जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आती है कि जो आपके जहन में भी नहीं होती है, और उस सवाल से आप एक ओपन एंडेड और सवाल पूछ सकते हैं. सवाल में के बाद जो इंफॉर्मेशन इतनी वास्ट आती है, तो एक सही सवाल पूछ ले. आई ऑलवेज से जस्ट आस्क वन ओपन एंडेड गुड क्वेश्चन, और अगला सवाल क्या पूछना है आपको सर को जानना नहीं पड़ेगा और एक एंजाइटी में नहीं बैठना पड़ेगा कि अब क्या पूछूं. अगला दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो. पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर एक अच्छा राइटली वर्डेड विद एम्पैथी एंड जनरल टू स्पेसिफिक है, तो द इंफॉर्मेशन विल स्टार्ट कमिंग. अवॉइड द क्वेश्चन आंसर ट्रैप. वो जो ये हाँ जी नहीं जी, हाँ जी नहीं जी वाला ट्रैप है ना, कि जी पहले आपने मरीज से सवाल पूछ लिया और उसने आपसे कहा आप नशा छोड़ना चाहते हैं, हाँ जी. अच्छा, अपनी मर्जी से नशा छोड़ना चाहते हैं, हाँ जी. क्या आपको नशा करते हुए स्ट्रेस तो नहीं पड़ता है, नहीं जी. When you start having these conversations, ये अपने आप को आप ट्रैप में, विशियस साइकिल में खुद को भी फंसा लेते हैं और मरीज. जब ऐसे जवाब आने शुरू हो, फौरन समझ जाए जी कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग गलत जा रही है. सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए यही होती है, जब हाँ या ना में जवाब किसी भी थेरेप्यूटिक सेशन के दरमियान में, शुरू में, मिडिल में, एंड में, कभी भी जब हाँ या ना कहो, तो दो चीजें एक्सप्लोर करें. मोटिवेशनल एम्पैथी नहीं हो रही है, या बी द क्वेश्चन इज क्लोज एंडेड, क्वेश्चन का सही लफ्जों का चुनाव नहीं हो. Puts client in a passive role. अगर आप क्लाइंट को पैसिव रोल में डाल रहे हैं ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करके, और एक्टिवली वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, याद रखिए जब हम किसी चीज के लिए मोटिवेटेड होते हैं तो हमारी पार्टिसिपेशन का लेवल ही और होता है, हमारे जज्बात और होते हैं, हमारी मोटिवेशंस और होती हैं, हम बोलते भी ज्यादा है, हम इंगेज भी ज्यादा करते हैं, हम क्वेश्चन भी ज्यादा करते हैं. अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो क्लाइंट बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा. दे आर नॉट गोइंग टू एंगेज विद यू, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट विद यू. एंड सो यहाँ पर आपका सेशन, मैं तो कहती हूँ कि अगर ऐसा सेशन चल रहा है तो इफ यू आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन, रीस्केड्यूल द सेशन. ठीक है. if you can't do it the right way, so don't continue the session. आप प्रेप दोबारा करें, बेहतर प्रेप करें, बिकॉज कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो आई है उसको उसकी लाइट में अपनी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को बेहतर करें. नो अपॉर्चुनिटी फॉर क्लाइंट टू एक्सप्लोर द एम्बिवलेंस. आपने क्लोज एंडेड कर दिए, तो आपने एक और ट्रैप ये है कि आपकी एम्बिवलेंस नहीं एक्सप्लोर हो रही. आपकी एम्बिवलेंस नहीं एक्सप्लोर हो रही तो आप चेंज नहीं ला सकते. एम्बिवलेंस में बार बार कहूंगी कि उसको करना भी चाहता है, नहीं भी कर सकता. वो किन लफ्जों में आपको ये बात बता रहा है, वो अपनी जुबान बोलता है, वो अपनी जुबान में बताएगा. अगर वो आपको नहीं ये बात आप निकलवा सके उसके, तो फिर आप आगे जाके उसके साथ काम नहीं कर सके. उसको ये नहीं आपको पता चलेगा कि वो why do you want to change, वो जो हम सवाल पूछते हैं ना कि why do people want to change, that question is going to be lost somewhere. Okay. Close-ended questions present conversational dead ends. Close-ended questions typically are gathering very specific information. हाँ या ना का जवाब हो रहा होता है, या घर में किसका सबसे ज्यादा करीब है तो वो एक बंदे का नाम ले लेगा. जब नशा शुरू किया तो कितनी ज्यादा जिस्मानी अलामत है, तो आपको 2-3 जवाब मोटे मोटे मिलते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. Tends to solicit yes or no, conveys the impressions that the agenda is not focused on the client. आपका इंप्रेशन ये जा रहा होता है कि एजेंडा क्लाइंट का नहीं है. जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो लग ये रहा होता है कि इस वक्त थेरेपिस्ट अपना काम कर रहा है, हमसे नहीं एक्सप्लोर. ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो मरीज को ये लगता है, अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर आप चेंज करना चाहते तो जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसको आप चेंज करते हैं. अगर आपने ऐसा सवाल पूछा है तो मरीज को ये लगा कि मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या क्या चीजों के बारे में काम कर सकता हूँ. और जब आप ये कहते हैं कि अच्छा आपको लगता है कि नशे ने आपकी जिंदगी में